the audiences see it. Sardar's role as the great freedom fighter, as the national integrator, and the national harmonization is known to everybody. Sardar became president of Ahmedabad municipality, but it was Sardar alone who could develop the city which he undertook to develop as a responsibility as a president of that municipality. And he came to know about Bhai Kaka, a civil engineer, being so successful at Sakkar Barrage in Karachi. He invited him by telling that Bhailal, you have served the nation in one way, now come back to Gujarat and serve the state also. And therefore, he gave an idea that Bhailal Bhai, our India is mostly in villages, so you have done enough to develop the city, now do something for the villages. So at that, Bhai Kaka took up this challenge. Sardar had already initiated the program of developing villages by providing scientific method of agriculture so that the farmers can improve their lot. Simultaneously, he wanted people to be self-reliant and economically independent, and therefore he initiated the program of Amul Dairy, and on which today the Amul name has become famous all over the country and even abroad. So this inspiration of Sardar inspired Bhai Kaka that why not do something to develop the youth of country. Youth which can come from the villages and get the top quality education. And that was the idea with which Vallabh. And because country needed not only the social scientists and humanists, they wanted science and technology to develop, and therefore Bhai Kaka started with the first college, which was known as named after elder brother of Sardar, Vithalbhai Patel Mahavidyalaya, which had both the streams, arts and science. But Sardar, the far-seeing statesman that he was, he knew that country can develop only if technology is applied. And therefore he wanted an engineering college to be built at Vallabh. So with science and arts being provided by VP Mahavidyalaya, he provided an engineering college. He inspired Birla to donate an amount of 25 lakh rupees, which may be more than about 25 crores these days, to build an engineering college, the first engineering college of Gujarat state. He sent a message, and the message which is carved on the stone at the entrance of VP college is that education is not merely information, not merely application of information, not merely knowledge, but the building of human character. There is one engineering college in a small village next to my native place, known as Vallabh Vidyanagar, next to Karamsar. I would like you to go and inaugurate that. So, Lord Mountbatten came here to inaugurate Birla Vishwakarma Mahavidyalaya, the engineering college, in 15th June 1948, and he came with Lady Mountbatten, and even though he was to depart on next day, leave shores of India and sail for England, he came here and he fulfilled his promise. This is how the progress, the development of the youth and area, villages, and through that the nation was very dear to Sardar. That is what Sardar is all about. That is what Vallabh is all about. That is what Anand Agricultural University is all about. That is what the Amul Dairy and NDDB are all about. And that is why we can always look up to this great man who was not only a freedom fighter, not one of the greatest patriots this country has seen, one of the person who integrated India, which was larger than the empire which was created by Chandragupta Maurya and Samrat Ashok. भारत निवासी प्यारे भाइयों और बहनें,
आज भारत की स्वतंत्रता का 1 साल परिपूर्ण होता है। उस समय पर हमें जो खुशहाली होनी चाहिए इतनी तो नहीं होती है, फिर भी 1 साल हमें कितनी कठिनाइयों में काटी और क्या क्या मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ा, उसके पर ख्याल करें तो हमें काफी खुशी मनानी चाहिए। बहुत काम करने का बाकी तो है ही, लेकिन इस मौके पर जो जो काम हमने किया वो बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी क्या हालत है और भविष्य में, नजदीक के भविष्य में हमें क्या करना है, उसके पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। पिछले साल में जो हमारे मुल्क में भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारों तरफ आग फैल गई, जो कौमी फिसाद फूट निकली, उस हालत में एक तो हमारे पास खुद राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती वो कहना मुश्किल है। उसी समय पर पंजाब का टुकड़ा होने के बाद या तो भारत का टुकड़ा होने के बाद जो मुसीबत हमारे सामने आई, उसमें क्या क्या कठिनाइयों में पसार होना पड़ा आप सब जानते हैं। लेकिन अब आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके, और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंसी खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में घिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजा को उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है तो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। अब हमारा प्रथम कर्तव्य जो हिंदुस्तान में शांति रखने का या शांति स्थापित करने का था वो ठीक तरह से हुआ है तो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि
अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की होजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अवसर पड़ा है और वहां से कौमी जहर दिन प्रतिदिन उबल रहा है, फैल रहा है। उन दोनों चीज का फैसला करने की हमारी पूरी कोशिश है और हम उम्मीद रखते हैं और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इतना हम करेंगे। लेकिन ये तो मुल्क के भीतर की बात है। हमारे मुल्क के आसपास जो हालत है उसके पर हमें ख्याल रखना है। चाइना में एक समय पर ऐसी हम उम्मीद रखते थे कि चाइना सारा एशिया की आगेवानी लेगा, लेकिन वहां की जो भीतर की हालत है उससे मालूम पड़ता है कि वहां से हमको कोई उम्मीद नहीं और वहां बड़ा दुख है। और चाइना में जो आज हालत हो रही है ऐसी हालत दुनिया में कोई मुल्क की नहीं है। अब उसके पास आप देखें मलाया, वहां भी फिसाद हो रही है, इंडो चाइना वहां भी फिसाद हो रही है और देखे ब्रह्मदेश हमारे पास, हमारे साथ साथ उनको आजादी मिल गई, उसकी क्या हालत है, बड़ी चिंताजनक हालत है और हमारे पास लगोलग पड़ा है। और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में उसका चेत फैलने में देर न लगे ऐसी हालत है, इसलिए हमें बड़ी सावधानता की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान जितनी ही स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए इतनी देने में झिझकते हैं और कुछ ऐसे कड़े कानून बनाते हैं जिसके वजह से आजादी पर खराब होती है। हमें कबूल करना पड़ता है कि ये बात कई दर्जे तक सही है। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। तो यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। अब जो जफरुल्लाह साहब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा? आज कश्मीर में यूनो में गए हैं हमारे तरफ से, क्यों गए? हमें तो इस तरह से कहा कि भाई ये पाकिस्तान खुली लड़ाई करे तब तो अच्छा है, लेकिन खुली लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आदमियों के पास लड़ाते हैं, अपने वहां से सारा सामान देते हैं, अपने वहां से सब हथियार देते हैं, अपने वहां से जितना सामग्री चाहिए पूरी देते हैं, अपने वहां से रास्ता देते हैं। तो उससे तो खुला लड़ाई करे तो अच्छा है, न करे तो हम दोनों उसमें पड़े हैं तो ठीक है, यूनो के पास जाओ, जाके वहां से कुछ हो न हो, लेकिन वहां हम कहां तक बैठ रहेंगे? इस तरह से हम बैठ नहीं रह सकते। तो कश्मीर का मामला तो अलग है, जूनागढ़ का मामला अलग। जूनागढ़ यूनो के पास जा नहीं सकता क्योंकि जूनागढ़ कहते हैं कि आपने भी रास्ता दिया था। हमने किसको रास्ता दिया था? हमने किसी को रास्ता दिया नहीं। वो जो जूनागढ़ के लोग थे, उन लोग अपने रास्ते से जाते थे, वही रास्ते गए, उसने हमने किसी ने रास्ता दिया नहीं और हमने न कोई चीज उसको दिया, कोई न साथ दिया। और जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? तो ये चीज तो हो गई। हाँ, हमने एक फैसला किया कि भाई ये रियासतों में हमें एक काम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि जैसा रियासत के लोग चाहे ऐसा करें। तो जैसे
लोगों का लोकमत हो इस प्रकार करना चाहिए। तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो लोकमत इस प्रकार का करो, हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है। लेकिन यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत? हम लड़ाई करके कश्मीर को ले ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही? तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा? फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है तो नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अब दूसरा आपको ये समझना है कि ऐसी जब नाजुक हालत में हम पड़े हैं, इस समय पर हमको क्यों तंग करते हो? आप ऐसी जब हिंदुस्तान की हालत है और दुनिया की हालत भी ऐसी है, देखो ये बत्ती पड़े, ऐसी जब हिंदुस्तान की नाजुक हालत है तब हमें क्या करना है? इस नाजुक हालत में हमें हमारी सरकार, हमारी हुकूमत है, उसको ठीक नहीं करेंगे और उसको साथ नहीं देंगे तो हमको नुकसान होगा। इसलिए आज जिस जगह पर प्रांतों में हमारी हुकूमत बैठी है उसको साथ देना चाहिए। तो मैं इतने लाखों आदमी आप जमा हुए हैं कलकत्ता में, तो मैं आप लोगों को बड़ी अदब से कहना चाहता हूं कि सुनिए आवाज न कीजिए, ठहरो भाई, क्या कहते हैं रिले करते हैं, ठहरो कोई गड़बड़ न करो। तो आप लोग हिंदुस्तान की ऐसी नाजुक हालत में इतने लाखों आदमी कलकत्ता में जमा हो गए हैं, तो आपको एक हमारा मैसेज ले जाना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए कि आज हमारी बहुत नाजुक हालत है। उस हालत में हमें न कोई हड़ताल करनी चाहिए, न कोई तूफान करने का कोई मौका पैदा करना चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सेक्युलर स्टेट चाहिए, हिंदुओं का राज, कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब गिर जाए, तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना ही नहीं, हम बैठे ठीक है। कोई कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वहां बैठे रहने दो, उससे बहुत नुकसान है, वहां बैठे रहने दो, करने दो उनको, पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी, ठीक है, अच्छा। तो आप लोग क्यों ऐसा कहते हो? उनको शंका पैदा होती है, ऐसी बात हम क्यों करें? मजबूत बनाओ, तगड़ा बनाओ पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मजबूत होता तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको कोई नुकसान नहीं है, वो ठीक है।
लेकिन बहुत दफे ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान मिटाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की। मैं पाकिस्तान के लीडरों को बार बार कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हो और कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो तो पाकिस्तान में पड़ी है, बाहर कोई नहीं है, वहां भीतर पड़ी है। जितने दुश्मन है वहां सब, इधर कोई नहीं है। हम उनका कोई बुरा नहीं चाहते हैं। क्यों हम बुरा चाहें? हमने राजी खुशी से तुमको दे दिया कि जाओ तुम पाकिस्तान बनाओ। लेकिन यदि हमारी आंख में धूल फेंकने के लिए कोई आवे तो हम कहते हैं कि इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, ये काम नहीं चलेगा। हमारा हिंदुस्तान बाकी का है, उसको छोड़ दो। बाकी हिंदुस्तान को उनका काम करने दो, उसमें आप दखल न दो, तो हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। तो आप देख लीजिए, हमने फैसला किया तो जितनी चीज थी उस चीज में उदारता से हमने उनको जितना इनका हिस्सा था उससे ज्यादा भी देने के लिए हमने कोशिश की। लेकिन जब हमने उनका रुपया देने का किया, उस समय पर हमने कहा कि आपको यदि 500 करोड़ रुपया चाहिए और इतना हिस्सा हमारा चाहिए तो हम देने के लिए, आपका हक हो न हो, ज्यादा हम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने लिख के दिया था कि यदि ये रुपये से गोली चलानी हो कश्मीर में तो हम इस तरह से रुपया नहीं देंगे। हाँ, तुम्हारे में ताकत हो ले जाओ, ठीक है, लेकिन हम खुशी से रुपया तो तब देंगे कि जब ये फैसला सब हो जाए तो आपका रुपया है, हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे। हमने आपके साथ मिलके एक फैसला किया तो एक कंसेंट डिक्री है, ये तो कोर्ट में जाना न पड़े, लेकिन आपस में बैठ के हमने फैसला कर दिया। तो तुम्हारी डिक्री कब बजेगी? जब ये हुक्मनामा तो तब बजेगा कि जब हमारा फैसला हो जाए। तो कश्मीर का फैसला हो जाए, उस रोज पैसा ले जाओ तुम्हारा। इस तरह से हम जब कहते हैं तो कि हमारा पैसा नहीं देते हैं और वो कुछ अपने जो फैसला किया उसमें से पलट जाना चाहते हैं, हमें कोई पलट नहीं।